Alright, so you think hackathons are about coding? Well, they are not. बहुत सारे tier 2 और tier 3 colleges hackathons में teams get formed before the event even starts. Some projects are ready before day one और winners when we talk about them कभी-कभी coders नहीं होते but best storytellers होते हैं. And yet hackathons are one of the fastest career accelerators in India. इस वीडियो में we will show you the real picture. What Indian hackathons are really like. What is broken, what is brilliant, and cheating के बिना कैसे जीता जाता है in hackathons में. All of that covered. And by the way, you can play this video on television, you can send it to your friends, you can send it to your people जो hackathons में participate करते हैं. Let's go. So, I'm gonna break this into two parts. Part 1 is real experience. We talk about infrastructure, pressure, team politics. I would say सब कुछ. Part 2, the real killer app. So, let's start. Hackathons वो क्या सिखाते हैं जो colleges कभी नहीं सिखाते. But first, let's talk fundamentals. Understanding के main चीज क्या है. Ideally एक hackathon simple होती है. You get a problem, you form a team, you build something in a fixed time with that team, and you show it. We can say you demo it. That is it. This is what a hackathon means. But tier 2 और tier 3 colleges की reality में hackathons अक्सर coding से ज़्यादा resource game होते हैं और engineering से ज़्यादा वहाँ पे presentation work करती है. And this is not something जो हर जगह होता है, पर काफ़ी जगह यही होता है. और अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो आप गलत expectations के साथ जाओगे उन hackathons में जहाँ पे आप सोच रहे हो coding will make you win. So before you even write code, you're fighting the environment. Let me explain that. So Wi-Fi usually drops every few minutes. आप किसी भी hackathon में जाइए. Extension boards are more important than laptops क्योंकि power socket supply नहीं रहता. Power sockets that are really too far. Noise is everywhere. Uncomfortable seating से लेके food से लेके everything else is just unpredictable. लोग आते हैं multi plugs लेके, have seen it, routers, backup SIM cards, power banks के साथ जैसे survival mission पे जा रहे हो. और यहाँ पे first rule आता है. Hackathons में teams tech choose नहीं करती है based on what is best. Sometimes they know कि this is the best problem to solve. They choose tech based on what will show or we can say present or you can say demo reliably. मतलब जिसको देख के बहुत अच्छा feel हो. Because no one remembers your back-end architecture if your demo doesn't work or it doesn't open, it doesn't showcases properly. So अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सब बात करते हैं, विस्पर करते हैं. It is called cheating. हाँ, वो exist करती है hackathons में और ignore करना useless है. Common patterns आपको दिखाता हूँ. Some teams arrive with projects that look really too much ready. Like you see them, UI is perfect, features are complete, they are like working like anything. Pitch is rehearsed so good कि आप कहोगे कि इन्होंने एक साल से rehearse कर रहे थे क्या? Not saying they didn't build it. What I'm saying is they didn't build it there. कभी-कभी projects lightning fast बन जाते हैं because half of the code was already written on GitHub. It was already available on GitHub, so they just pulled it from there. और फिर भी आप देखते हो तो रोल स्प्लिट टीम्स आती है वहां पे. एक बंदा कोड करता है, एक UI और PPT, एक पिचिंग और कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग पे काम कर रहा है. और गेस व्हाट, ये टीम अक्सर 3 हार्डकोर कोडर्स वाली टीम को बीट कर देती है जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते बस. एंड यू माइट से कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज इन द मेन कोर मैन. लाइक इट स्टेज इन द कोर. Hackathons were about showing the best tech और engineering solutions. प्रॉब्लम hackathon की नहीं है, रियलिटी की है. लेट्स बी ऑनेस्ट, काफी hackathons जज होते हैं लाइक दिस. स्टोरी कितनी क्लियर है बंदे की, जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है वो कितने अच्छे से डेमो को दिखा रहा है, कितना स्मूथ है वो डेमो, कॉन्फिडेंस कैसा है बंदे का, इम्पैक्ट सुनने में कैसा लग रहा है, रियल वर्ल्ड में वो कैसे कन्वर्ट होगा, दैट्स नॉट समथिंग पीपल आर कंसर्न्ड विद. सो इसका मतलब कभी कभी बेस्ट इंजीनियरिंग नहीं जीतती है, बेस्ट नरेटिव जीतता है. और हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है. हमने इतना बिल्ड किया, इतनी मेहनत करी, उन्होंने सिर्फ स्लाइड्स बनाई, फिर भी वो जीत गए. दैट्स अ वैलिड फीलिंग, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. बट इंडस्ट्री में भी काफी बार ऐसा ही होता है. बिकॉज अगर कोई समझा ही नहीं पाया तुमने क्या बिल्ड किया है तो इंजीनियरिंग की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है. एंड ये सेम एग्जांपल आप रेज्यूमे में भी देखोगे, जॉब्स में भी देखोगे, आप इंटरव्यूज में भी देखोगे. एंड इफ यू वांट टू हियर अबाउट दैट, कमेंट करिए, विल ब्रिंग दैट वीडियो टू. तो अगर हैकेथॉन्स इतने मेसी हैं, इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी मैटर क्यों करते हैं? बिकॉज हैकेथॉन्स का किलर ऐप विनिंग नहीं है. वो इसलिए क्योंकि हैकेथॉन्स का वो जो किलर ऐप हमने बात करी ना, वो विनिंग नहीं है, वो जीतना नहीं है.
द किलर ऐप जो आप समझ रहे हो, दैट इज शिपिंग और डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडर प्रेशर। हैकेथॉन्स वो सिखाते हैं जो कॉलेज कभी नहीं सिखाते। डेमो के लिए बिल्ड करना, दिखाने के लिए बिल्ड करना, परफेक्शन के लिए नहीं बट प्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा टूल बनाना जो उस वक्त एटलीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ब्रोकन टूल्स के साथ काम करना, इंटरनेट चला गया तो उस सिचुएशन को हैंडल करने से लेके, एपीआई फेल हो गई से लेके, लैपटॉप हैंग हो गया से लेके, फिर भी कई बार आपको ब्रोकन चीजों के साथ शिप करना सिखाते हैं। स्ट्रेस के अंदर कम्युनिकेट करना, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल वर्ड्स में समझाना, टीम डायनामिक्स रियल टाइम में देखने से लेके कौन फ्रीज हो रहा है बंदा, किसका लैपटॉप फ्रीज हो रहा है, किसकी सर्विस फ्रीज हो रही है, ये सब कुछ देखना एंड साथ ही साथ कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना। 30 टीम्स और जजेस के सामने वो वर्किंग प्रोडक्ट दिखाना, ये सब कुछ तुम्हें चेंज कर देता है हमेशा के लिए। और नेटवर्किंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। स्ट्रेंजर्स से बात करना, मेंटर्स, जजेस, स्पॉन्सर्स, अदर टीम्स जो वहां पर आई हैं उनके लोगों से बात करना, बार बार अपना आइडिया एक्सप्लेन करना, फीडबैक लेना लोगों से, कन्वर्सेशंस, ऐसी कन्वर्सेशंस जो कॉन्फिडेंट आपको बढ़ाती हैं, उन कन्वर्सेशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना। लोगों से बात करना बटरिंग नहीं है, ये एक विजिबिलिटी होती है जो आपको कल प्रॉफिट देती है। और रियल वर्ल्ड में जो अपना काम क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं वही याद रखे जाते हैं। हैकेथॉन्स बेसिकली स्टार्टअप लाइफ का कंप्रेस्ड वर्जन है। 24 घंटे में आपको वो सब कुछ देखने को मिलता है जो बड़ा मजेदार होता है और आपको बहुत कुछ सिखाता है। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट हर हैकेथॉन में 2 टाइप की टीम्स होते हैं। एक होते हैं बिल्डर्स, ये वो लोग होते हैं जो डिलीवर करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग होती है पर पिच करना नहीं आता, इनका डेमो अनस्टेबल कई बार हो सकता है। कुछ होते हैं विनर्स, इनका टेक डिसेंट होता है लेकिन स्टोरी बहुत क्लियर होती है, स्ट्रॉन्ग डेमो होता है, स्ट्रॉन्ग पिच होती है। और आप सोचोगे सीरियसली, हाँ जो अच्छी इंजीनियरिंग है वो फेल हो रहा है? हाँ। अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है कि हैकेथॉन्स क्लैरिटी और स्पीड को परफेक्ट इंजीनियरिंग से ज्यादा रिवॉर्ड करते हैं। तो आप जल्दी डिलीवर कर सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो, आप जीत जाओगे। ये ट्रुथ है। एंड वंस यू एक्सेप्ट दिस थिंग, यू गेट द आइडिया ऑफ इट कि ओके ऐसा होता है। अब इस गेम को हैकेथॉन जीतने के गेम को क्लीन तरीके से खेल सकते हो। सो एथिकली जीतना चाहते हो आप हैकेथॉन्स, सिंपल रूल्स को फॉलो करो, सिंपल बट रिलायबल ऐप बनाइए विच एक्चुअली वर्क्स एंड यू कैन एक्सप्लेन इट। कॉम्प्लेक्स और क्रैशिंग ऐप से लाख गुना बेटर होता है ये करना कि आप एक किलर फीचर डालो, 10 एवरेज फीचर्स नहीं। इंटरनेट नहीं आएगा, इंटरनेट चला जाएगा, इंटरनेट मर जाएगा, ये मान के आप अपना ऐप क्रिएट करिए सो दैट के इट वर्क्स ऑफलाइन। अगर इंटरनेट नहीं आया तो यू कैन शो इट। 90 सेकंड्स के पिच बनाइए जो आप एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज नोबडी वांट्स टू हियर अ लॉन्ग पैराग्राफ, राइट? प्रूफ ऑफ वर्क दिखाओ। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब आपका वो ऐप कैसे वर्क करता है, क्या उससे फायदे होंगे, एवरीथिंग एल्स। अपने कमिट्स, लॉग्स, स्क्रीनशॉट्स दिखाओ और डेमो को जो परफॉर्मेंस की तरह प्रैक्टिस करा है उसे शोकेस करो, बिकॉज इट इज अ परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे। आपको स्टेज जैसा परफॉर्म करना है एंड इफ यू कैन डू दैट, दैट इज इट। सो टियर 2 और टियर 3 हैकेथॉन्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कम रिसोर्सेस, कम मेंटरशिप, कम एक्सपोजर, फिर भी लोग बिल्ड कर रहे हैं, लोग दिखाना चाहते हैं दुनिया को अपना वर्क। ये प्रिविलेज नहीं है, ये एडेप्टेशन है और एडेप्टेशन एक रियल इंजीनियरिंग स्किल है। अगर तुम कियोस में बिल्ड कर सकते हो, प्रोडक्ट को शिप कर सकते हो, तुम कहीं भी शिप कर सकते हो, तुम कहीं भी बिल्ड कर सकते हो, तुम अपना वर्क दिखा सकते हो, तुम किसी भी बुरे से बुरे सिनेरियो में बिल्ड कर सकते हो। फिर सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? हैकेथॉन्स फेयर नहीं होते। ऑब्वियसली जजिंग इनकंसिस्टेंट हो सकती है, कॉपी कल्चर एग्जिस्ट करता है, अनफेयर फील होता है, ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही है। आई डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। मेंटली एग्जॉस्टिंग भी होता है, I know that. फिर भी वर्थ इट होते हैं क्योंकि हैकेथॉन्स बेस्ट कोडर होने के बारे में नहीं होते। They are about being the best builder under pressure. They are about being a best coder under pressure. अगर तुमने टियर 2 या टियर 3 हैकेथॉन्स में गए हो या उनमें कभी एक्सपीरियंस कुछ किया है, कमेंट्स में बताओ। सबसे रियल चीज जो तुमने वहां देखी, अच्छी हो बुरी हो, डजंट रियली मैटर। और अगर चाहो तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन द रियल स्टोरी या हैकेथॉन प्लेबुक, टीम, टेक स्टैक, डेमो स्ट्रेटजी से लेके एवरी लिटिल थिंग। आई वुड कवर ऑल ऑफ दैट। तब तक के लिए I'll be meeting you in the next video. I would love to know your comments, your POV on this topic और आपने क्या experience किया in the comments. Till then, bye bye. Take care. This is Sharian's Coding School. You can subscribe us because we believe कि हम कुछ interesting video लाने वाले हैं इसी channel पे. Let's do great things together. Have a good day or maybe a good night. Bye bye.